Assalamu alaikum. My name is Dr. Saqib Iqbal. Welcome to lecture number 9 of software construction. Today we will again look at some Java implementation of the constructs we've been studying for a few lectures. If you remember, we've been talking about classes types, and we've been talking about different type of constructs, keywords, and different kind of properties of classes which we use. We have talked about interfaces, inheritance, abstract classes, and also we have talked about different types of usage of classes and different types of keywords we use, how you can make class methods, how you can make instance variables, how you can use them, how you can override the methods, and what the overloading is. So we have studied all these in previous lectures. Today we will continue with this, and we will see some other concepts which are very important in object-oriented design. So in today's topic's agenda is enumeration types. We've been talking about the enumeration types for a couple of lectures, but I'll show you how you can implement them in Java. And then memory allocation as well. Last time we talked about it a little bit, that if time given we would talk about it, but unfortunately we couldn't find time in the last lecture. So today we're going to talk about this, that how you can save memory, how you can allocate memory to the variables, how you can access the address of instance variables, and how you can assign one address to another variable. And then there are different kind of equality toString methods which we are going to use in it, and of course copying and object identity will also be discussed in this lecture. ऑब्जेक्ट क्लास के ऊपर भी हम बात करेंगे, इक्वल्स और टू स्ट्रिंग जो मेथड्स हैं जो कि ऑब्जेक्ट क्लास के अंदर लिखे हुए हैं, उनको कैसे आप ओवरराइड कर सकते हैं. वी विल आल्सो टॉक अबाउट क्लोनिंग विच इज मेकिंग द कॉपीज of objects, and then we will see that what are the nested classes, like how one class can be written within another class. अगेन इसके लिए आपको जावा ट्यूटोरियल के अंदर जो टॉपिक्स पढ़ने चाहिए वो एक है एनुमरेशन टाइप्स, और दूसरा है नेस्टेड क्लासेस का पेज है, दैट इज़ अ सेपरेट पेज ऑन द जावा ट्यूटोरियल. एंड you should also consult classes and object lesson page on Java tutorial as well. And there is a object as a super class, and interface and inheritance, equality, relational and conditional operators, and language basics lesson. So these are the topics which you can study in the Java tutorial. And apart from Java tutorial, I always said you can take any object-oriented book and you will find all these topics covered there. And if you want to know about know more about their usage, then you can go online and just Google these topics, and there are examples given, there are explanations given, and you can find and read more about these constructs. Okay, there is again I also told you to read this topic in the previous lecture as well, the 3 things you should know about hash code. Now hash code, this topic is covered in Eclipse Source Developer. This is again very important, because hash code is the address which is given to an object, and how you can use it, how you can assign one object's hash code to another. So you can study about it, and this will help you in understanding how these references is made in the objects. Okay, the last objective of the for the last weeks were the student will be okay, in this week, sorry, what we're gonna study is that after studying this course, after studying these topics which we are going to cover today, you will be able to implement object-oriented design efficiently. You will be able to talk about enumerations, memory allocation, object identity and assignment, and equality and cloning, and also you will be able to talk about nested classes. The lectures will give you the basic theory, but they won't give you a working understanding. Of course, working understanding के लिए आपको हमेशा लैब्स करनी पड़ेंगी. ये मैं हर लेक्चर में बताता हूँ, because this is very important, that if you just read about these topics, if you just read about the examples here, then you can't understand exactly what these topics are about, what these constructs are about. So you should always
have some practice, you should always copy this code and write it in the IDE and trying to learn from there by executing the code. And you should also work on the examples. What you can do is that copy the examples from internet or copy the examples from these slides and just paste them in your Java developer and try to run them and then play with it, like try to change the code or try to write some different code and see what happens. This is the only way to understand the concepts in Java, and this is the only way to learn to write in Java. Otherwise, if you just keep reading or if you just keep listening to these lectures, you won't have a perfect idea what all these constructs are about, what all these topics are about. Enumeration types. Okay, an enumeration type is a special data type that enables for a variable to be a set of predefined constants. So if you, for example, have got days, this is a perfect example, and you have got 7 days in it, Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday. So all these 7 days make a set. So this is just like a set in mathematics. So you can call it enumeration. Okay, and then it will be declared just like a class, like public enumeration day. Now day is the name of the class, and these are the types which are given in it. But of course, with the keyword enumeration, enum, you are saying that it is an enumeration, it's not a class. The variable must be equal to one of the values that have been predefined for it. And common examples include compass direction, ठीक है, या days of the week. Compass direction में of course north, east, north, south, east and west आप लिख सकते हैं. Because they are constant, the name of enumeration types fields are in uppercase letter. And this is again a very good thing to understand. This is a convention which is used, that if you are going to write some constant in Java, then you should always write it in uppercase. For example, if in mathematical equation solving program, if you are going to write the value of pi, then you should always write the pi in uppercase letter. So uppercase letter shows that these things are constant, and so is the case with enumeration, because they are not going to change. The day will always be from Sunday to Saturday. For example, you would specify days of enum like this. You should use enum types anytime you need to represent a fixed set of constant. That includes natural enum types such as the planets in our solar system, and data sets where you know all possible values at compile time. For example, the choice on a menu. देखें, अगर आपको पता हो कि सिर्फ यही वैल्यूज आने वाली हैं, ठीक है, एक सेट का अगर आपको पता हो, जिस तरह डे के अंदर आप संडे से सैटरडे तक ही आ सकते हैं, इसके अलावा कोई डे इसके अंदर इंक्लूड नहीं हो सकता. अगर इसी तरह की कोई चीज़ आपके प्रोग्राम का हिस्सा है, आपके सॉफ्टवेयर का हिस्सा है, और आप समझते हैं इसके अंदर कोई वैल्यू ना ही चेंज होगी और ना ही कोई वैल्यू ऐड होगी, तो उसको आप इनमरेशन में लिख सकते हैं और फिर इनमरेशन के थ्रू आप उनको एक्सेस करते हैं. इन अदर वर्ड्स ये कॉन्स्टेंट्स ही होते हैं बेसिकली, तो इनको आप इस तरह एक्सेस कर सकते हैं. अब जिस तरह के एक एग्जांपल है कि द चॉइसेस ऑन अ मेन्यू. अब आपको पता है कि चॉइसेस ऑन मेन्यू चेंज नहीं होने वाले. अगर होने वाले हैं तो फिर आप उनको इनमरेशन ना बनाएं, लेकिन अगर रन टाइम पे जब सिस्टम चलेगा और उन्होंने चेंज नहीं होना, तो आप एक इनम बना लें मेन्यू टाइप का और उसके अंदर वो सारी चॉइसेस लिख दें. सिमिलरली कमांड लाइन फ्लैग्स एंड सो ऑन. कमांड लाइन फ्लैग्स जो होते हैं, अगर तो कोई ऐसे फॉर एग्जांपल CMD आप दबाएं तो आपको कमांड प्रॉम्प्ट खुल जाती है, DIR दबाएं तो कमांड लाइन के अंदर डायरेक्टरी शो हो जाती है. तो सिमिलरली इफ देयर आर सम फ्लैग्स और सम कमांड्स गिवन इन इट और सिंपल फ्लैग्स गिवन in the command line, then you can write them in the set. So the basic purpose is that if you know a set which is not going to change, then you can write it in enumeration. अब बात करते हैं मेमोरी एलोकेशन की. वी यूज अ रेफरेंस वेरिएबल टू रेफर टू इंस्टेंशिएटेड ऑब्जेक्ट्स. आपको मैंने बताया था कि जब आप इंस्टेंशिएशन होता है ऑब्जेक्ट को बनाने का प्रोसेस, कि जब आप ऑब्जेक्ट्स को बनाते हैं
और उसके अंदर अगर आपने उसको न्यू और आगे कंस्ट्रक्टर का नाम नहीं लिखा, सिंपल फॉर एग्जांपल आपने बॉल बी लिखा है, तो अब ये बी जो है वो रेफरेंस वेरिएबल है बॉल टाइप का, ठीक है। अब ये एज ए वेरिएबल भी इसको आप कह सकते हैं। आपको अगर याद हो तो वेरिएबल जो होते हैं वो सिर्फ कुछ एट्रीब्यूट्स होते हैं, जिस तरह के आपने इंटीजर एक्स, फ्लोट वाई अगर आपने लिखा है तो ये वेरिएबल्स हैं। लेकिन अगर जिस तरह इंटीजर एक्स कॉमा लिखते हैं तो इंटीजर डेटा टाइप है, एक्स वेरिएबल का नाम है। सिमिलरली अगर आप क्लास का नाम और आगे ऑब्जेक्ट का नाम लिखते हैं तो इसका मतलब है वो बॉल बी लिखते हैं तो बी एक रेफरेंस वेरिएबल भी बन जाता है, और बी के अंदर अब एड्रेस होगा कि जहां पर ये बी सेव हुआ है उसके अंदर आपकी मेमोरी के अंदर। द वैल्यू इन अ रेफरेंस वेरिएबल इज एसेंशियली अ पॉइंटर टू एन ऑब्जेक्ट। तो इसके अंदर जो वैल्यू होगी वो पॉइंटर है, बेसिकली वो क्या है, एड्रेस है, हैश कोड है, ठीक है। अब उसको आप यूज करते हुए बहुत सारे काम कर सकते हैं। कैसे? अ स्पेशल वैल्यू नल इंडिकेट्स देयर इज नो ऑब्जेक्ट। अगर आप उसको नल असाइन करवा देंगे तो इसका मतलब है अभी इसके अंदर कोई ऑब्जेक्ट नहीं आया। द रन टाइम सिस्टम, द JVM जावा वर्चुअल मशीन जो है, इंटरप्रेट्स रेफरेंस वैल्यू एज एन इंडेक्स इनटू अ हीप, an area of memory that is set aside by the JVM for storing instantiated objects। आप एक ये जितने भी instantiated objects होते हैं they are stored in heaps। हीप का आपको पता है, हीप कहा जाता है जब आप एक चीज के ऊपर दूसरी चीज रखते जाएं, ठीक है, तो वो एक पाइल अप बनता जाता है हीप। तो उसके अंदर जो पहली वैल्यू होगी वो होगी जो कि सबसे आखिर में आई है, ठीक है, और जो सबसे पहले आई होगी वो सबसे नीचे होगी, ठीक है। लास्ट इन फर्स्ट आउट वाला चक्कर होता है इसमें हीप में। तो हीप के अंदर एड्रेसेस बनते जाते हैं, जो जो आपने एड्रेसेस आप जो जो नए रेफरेंस वेरिएबल्स बनाते जाएंगे उनके हीप्स के अंदर एड्रेसेस सेव होते जाएंगे। फॉर्मली द रेंज ऑफ अलाउएबल वैल्यूज फॉर अ रेफरेंस वेरिएबल इज डिफाइंड बाय इट्स रेफरेंस टाइप। अब दिस इज अ स्टैटिक प्रॉपर्टी, लाइक रेफरेंस टाइप उसकी वही होगी जो कि आपने अगर क्लास का नाम दिया है तो वो उसकी रेफरेंस टाइप है, ठीक है। फॉर एग्जांपल द रेफरेंस टाइप ऑफ O1 is object, this means that it can point to any instance of object, ठीक है। अब ये इसकी टाइप है कि O1 जो है ना, अगर आपने ऑब्जेक्ट O1 लिखा है तो O1 की टाइप ऑब्जेक्ट है, यानी अब ये ऑब्जेक्ट के किसी भी इंस्टेंस को जो पॉइंट कर सकता है, ठीक है। अब अगर एक और B1 बनाया गया और वो भी ऑब्जेक्ट टाइप है तो उसको अगर आप इसको असाइन कराएंगे तो अब ये O1 किसको पॉइंट कर रहा होगा, B1 को, क्योंकि B1 भी एक रेफरेंस वेरिएबल है, उसके अंदर कोई एड्रेस पड़ा हुआ है, वो एड्रेस आपने O1 को दे दिया। The new operator allocates sufficient memory on the heap to store all the fields of that object is instantiating. For example, if you look at this, you have got integer I which has got 20 in it, and then there is a ball B1, new ball, आपने ये बना दी। अब इधर देखें आप कि इंटीजर आपने I बनाया था और इंटीजर I के अंदर क्या पड़ा हुआ है, 20 पड़ा हुआ है। आपने B1 बनाया, ठीक है। अब B1 जो है उसको ये वाला एड्रेस उसके अंदर सेव हुआ है, ठीक है। अब वो किसको पॉइंट कर रहा है, अगर आप सिंपली B1 को लेंगे तो B1 एक इसको पॉइंट कर रहा होगा, एक ऐसी स्पेस को मेमोरी के अंदर पॉइंट कर रहा होगा जिसके अंदर ये सारी वैल्यूज लिखी होंगी कि इस B1 की क्लास कौन सी है, इसके अंदर इंटीजर वैल्यू कितनी है जो कि अभी हमने 10 असाइन की है, y की पोजीशन कितनी है जो कि अभी हमने जो कि पहले से ही 20 असाइन हुई है, और इसका कलर कौन सा है, रेड है। तो इस तरह आप ये बता रहे हैं कि B1 जो है वो इसको पॉइंट कर रहा है, ठीक है। अब ये I आपने लिखा है Y, ठीक है, और Y की जगह I लिखा है तो I बेसिकली क्या है, 20 है, तो इस वजह से ये 20 हुआ है, ठीक है। तो अब इसके अंदर अगर आप देखें कि अगर O1 की हम बात करें, B1 तो इधर है, O1 अब ऑब्जेक्ट का था और आपने O1 को क्या दे दिया, B1 दे दिया। तो B1 का जो एड्रेस था जो कि ये वाला एड्रेस था 0xFE100 140, वो किसको मिल गया है, O1 को।
अब देखें O1 एक ऑब्जेक्ट टाइप है और उसको कौन सा एड्रेस मिला, वही एड्रेस जो B1 का था, OXFE 100-140। इसका मतलब है अब O1 भी इसे ही पॉइंट कर रहा है, B1 भी इसे ही पॉइंट कर रहा है इस लाइन के बाद। ठीक है, ये लाइन आप लिखने का मकसद ही यही था कि आप B1 दे रहे हैं O1 को। ठीक है, तो B1 है क्या चीज़, वो बेसिकली एक एड्रेस है। तो अगर आपने O1 को वही एड्रेस दे दिया तो इसका मतलब है कि B1 भी उसी को पॉइंट कर रहा होगा और O1 भी उसी को पॉइंट कर रहा होगा। अब फर्क सिर्फ ये है कि ये जो बेसिकली ये बीच में है ये डायनेमिक टाइप है और ये स्टैटिक टाइप है। ठीक है, अ मॉडल ऑफ जावाज टाइप सिस्टम फॉर रेफरेंस। अब आपको टाइप सिस्टम भी देखना चाहिए जावा का कि उसके अंदर टाइप्स कैसे डिक्लेयर हुई हैं। एक है जावा वैल्यू। जावा वैल्यू की दो चाइल्ड क्लासेस हैं जो कि हैं प्रिमिटिव वैल्यू और रेफरेंस वैल्यू। दो किस्म की वैल्यूज होती हैं। प्रिमिटिव होती हैं जो कि इंटीजर, फ्लोट, डबल, कैरेक्टर होती हैं। रेफरेंस वैल्यू होती हैं जो कि आप ऑब्जेक्ट्स, जिस तरह अगर आपने बनाया बेस आगे बी लिखा तो ये अब आप रेफरेंस वैल्यू बना रहे हैं। ठीक है, रेफरेंस वैल्यू के अंदर एक नल रेफरेंस भी बन सकता है। कभी कभी आप अगर आप डिक्लेयर करें बेस बी और इज इक्वल टू न्यू ना लिखें बल्कि नल लिखते तो आपका क्या कर रहे हैं, नल रेफरेंस बना रहे हैं। नल रेफरेंस किस टाइप का होगा, रेफरेंस वैल्यू टाइप का। ठीक है, अच्छा अब जावा वैल्यू जो है वो कनेक्टेड है जावा टाइप के साथ। ठीक है, जावा वैल्यू की एक टाइप ज़रूर होगी। अच्छा, अब जावा वैल्यू वेरिएबल्स टाइप होते हैं, उसके अंदर टाइप एक ज़रूर होगी। टाइप जो है जावा टाइप वो भी दो तरह की होती है, रेफरेंस टाइप और प्रिमिटिव टाइप। प्रिमिटिव टाइप में इंटीजर होगा, फ्लोट होगा। देखें ये प्रिमिटिव वैल्यूज हैं। इंटीजर x लिखा है तो ये x है और इंटीजर क्या है, इंटीजर टाइप है। तो प्रिमिटिव टाइप होगी इंटीजर और प्रिमिटिव वैल्यू होगी x। सिमिलरली रेफरेंस टाइप, अगर आपने बॉल b लिखा है तो बॉल जो है क्लास है ना, तो वो क्लास इज अ रेफरेंस टाइप एंड b इज अ रेफरेंस वैल्यू। ओके, इसी के अंदर अब रेफरेंस टाइप के अंदर देयर आर थ्री अदर टाइप्स, इंटरफेस टाइप, क्लास टाइप एंड अरे टाइप। इंटरफेस टाइप हम पहले से पढ़ चुके हैं। आप इंटरफेस का भी तो एक ऑब्जेक्ट बना सकते हैं या आप क्लास का एक ऑब्जेक्ट बना सकते हैं। ठीक है, और अरे का भी ऑब्जेक्ट बना सकते हैं। उसके अंदर हमने अरे लिस्ट देखी थी, अगर आपको याद हो तो अरे लिस्ट का हमने बिल्कुल ऑब्जेक्ट, जिस तरह क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं इसी तरह हमने अरे लिस्ट का ऑब्जेक्ट बनाया था। द क्लास टाइप कन्फर्म्स टू इंटरफेस टाइप। अब क्लास 5 आपको पता ही होगा कि इंटरफेस जो होता है उसकी कुछ क्लासेस होती हैं। ठीक है, अब वो जो क्लासेस होती हैं अगर वो किसी इंटरफेस का हिस्सा है तो दे शुड कन्फर्म टू। कन्फर्म होता है कि आप किसी के स्टैंडर्ड को फॉलो कर रहे हैं। इट मीन्स कि इंटरफेस के अंदर जितने मेथड्स होंगे वो ये वाली क्लास जो होगी वो इम्प्लीमेंट करेगी। अगर कोई ऐसी क्लासेस हैं जो किसी इंटरफेस का हिस्सा है तो फिर आप इस तरह की बात लिखते हैं। ठीक है, और अभी आप इसको देखें, रेफरेंस वैल्यू जो है वो पॉइंट्स टू जावा ऑब्जेक्ट। आपको मैंने बताया है कि रेफरेंस वैल्यू जो होती है वो जावा ऑब्जेक्ट की होती है और जावा ऑब्जेक्ट जो होता है वो जावा टाइप का होता है। जावा टाइप वही है ना कि जावा ऑब्जेक्ट जो होगा यानी कि क्लास दी हुई होगी। ठीक है, उस क्लास को आप रेफरेंस टाइप कह देंगे और उसका एक ऑब्जेक्ट बनेगा जिसको आप जावा ऑब्जेक्ट कहेंगे। जावा ऑब्जेक्ट के अंदर फिर दो किस्म के होते हैं, क्लास इंस्टेंस होता है और अरे होता है। ठीक है, अरे लिस्ट के अंदर जो आप ऑब्जेक्ट बनाते हैं वो अरे का ऑब्जेक्ट बनेगा और जो आप क्लास का अंदर ऑब्जेक्ट बनाएंगे वो क्लास इंस्टेंस उसे कहा जाता है। मैंने आपको पहले बताया था इंस्टेंस और ऑब्जेक्ट सेम चीज़ है। तो दिस इज़ अ वेरी गुड मॉडल ऑफ जावास टाइप सिस्टम। और अगर आप इसको देखें तो आपको बहुत सारी समझ आ जाएगी कि रेफरेंस वैल्यू, प्रिमिटिव वैल्यू क्या होती है, रेफरेंस टाइप, प्रिमिटिव टाइप क्या होती है। फिर ऑब्जेक्ट है, दो डिफरेंट किस्म के ऑब्जेक्ट्स होते हैं। सिमिलरली 3 डिफरेंट किस्म की टाइप्स होती हैं। इसके मुतालिक अगर आप मज़ीद पढ़ना चाहते हैं तो बेसिकली ये एक पेपर है कॉलमन आर
और गोगोला एम का कि कैप्चरिंग डायनामिक प्रोग्राम बिहेवियर विद यूएमएल कोलैबोरेशन डायग्राम्स। बेसिकली इनका टॉपिक तो डिफरेंट था यूएमएल की कोलैबोरेशन डायग्राम के ऊपर, लेकिन उन्होंने इसके अंदर ये जावा के जो टाइप सिस्टम है उसकी एक मॉडल बना के पेश किया है। दिस इज़ अ वेरी गुड पेपर विच वाज पब्लिश्ड इन द प्रोसीडिंग ऑफ CSMR और जो कि 2001 में हुई थी। आप सिंपली इसको गूगल करें, कैप्चरिंग डायनामिक प्रोग्राम बिहेवियर विद यूएमएल कोलैबोरेशन डायग्राम्स, एंड ट्राई टू गेट अ PDF कॉपी ऑफ इट। PDF कॉपी लेने का तरीका यही है कि इफ यू टाइप द गूगल नेम एंड देन यू टाइप स्पेस फाइल टाइप कॉलन एंड PDF, तो इस तरह अगर आप सर्च करेंगे तो आपको इस पेपर की PDF मिल जाएंगी। अदरवाइज ये पेपर अगर कहीं IEEE या ACM की साइट के ऊपर पड़ा है तो फिर इसकी PDF मिलना आपके लिए मुश्किल होगी, अनलेस यू हैव गॉट एक्सेस टू दीज वेबसाइट्स। एंड ऑफ कोर्स एक्सेस जो होता है वो मेंबरशिप के थ्रू होता है, तो शायद आपकी मेंबरशिप ना हुई हो तो ये आपके लिए प्रॉब्लम हो सकता है। सो it's advisable that if you write just simply like this, and you can either go to advanced search and select PDF there, or you can write file type colon PDF and you can find the PDF copies of these papers. So have a go at this paper, try to read it and try to look at this system, and if you don't understand, of course this paper has got explanation of this Java type system which is very good for you to understand. ये बातें भी अगर आप समझ रहे हो कि मल्टीप्लिसिटी दी हुई है कि जावा वैल्यू जो होगी उसकी एक ही जावा टाइप होगी। इसका क्या मतलब है कि अगर आपने इंटीजर x लिखा है तो x जो है चूंकि वैल्यू है और जावा टाइप इसके अंदर क्या है, इंटीजर। ठीक है, टाइप है ना, डेटा टाइप जिस तरह होती है, तो दिस इज जावा डेटा टाइप। तो इंटीजर डेटा टाइप है और x वैल्यू है, तो क्या x जो है उसकी मल्टीपल डेटा टाइप्स हो सकती हैं? नहीं हो सकती। फॉर एग्जांपल अगर आप लिखें इंट x और साथ ही आप लिखें फ्लोट x, so this is an error. Okay, this is a compile time error. It will show you an error क्योंकि x जो है या तो इंटीजर हो सकता है या फ्लोट हो सकता है। तो ये वही बात बताई हुई कि या तो ये दोनों 1 1 होंगे। सिमिलरली जावा वैल्यू अच्छा डिक्लेयर टाइप भी 1 होगी और जावा वैल्यू की आर्म टाइप भी 1 होगी। ओके, सो यहाँ पर भी एक मल्टीप्लिसिटी लिखी हुई है कि रेफरेंस वैल्यू जो होगा वो एक जावा ऑब्जेक्ट होगा। ऑफ कोर्स ये चूंकि रेफरेंस वैल्यू हमने बात की थी, जिस तरह बॉल बी लिखे आप तो बी ऑब्जेक्ट है या रेफरेंस है, रेफरेंस वेरिएबल है, तो रेफरेंस वैल्यू इसको कहें आप, तो ये पॉइंट्स टू 1 जावा ऑब्जेक्ट, तो ये एक जावा ऑब्जेक्ट होगा। और इसके अंदर मल्टीप्लिसिटी इधर से इधर भी लिखी हुई है कि जो जावा ऑब्जेक्ट होगा वो बेसिकली एक जावा टाइप होगा। बेसिकली ये दोनों सेम चीज़ है, ये ऑब्जेक्ट है और ये उस क्लास का नाम है। ठीक है, अच्छा अब हम वेरिएबल्स को जरा दोबारा से देखते हैं कि द जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज डिफाइंस द फॉलोइंग काइंड्स ऑफ वेरिएबल्स। Class variable, this is very important and we've been repeating it again and again because unless and until you understand these things you are not able to write proper code. So you should know what class variables is. Class variables जो होते हैं उनकी लाइफ टाइम आप देखें तो created when a class is loaded, usually when the application or applet is loaded, destroyed when a class is reloaded, or when the application terminates. तो या तो एप्लीकेशन टर्मिनेट होगी तो ऑटोमेटिकली डिस्ट्रॉय हो जाएगा, या अगर क्लास रीलोड होगी जो कि बहुत कम होता है। ठीक है, क्लास वेरिएबल सिंपल वो वेरिएबल्स होंगे जिनके साथ आपने स्टैटिक का वर्ड लिखा होगा। ऐसे वेरिएबल्स जो आपने बनाए और उनके साथ स्टैटिक लिख दिए तो वो क्लास वेरिएबल होते हैं बाय डिफॉल्ट। अच्छा, इनकी इनिशियलाइजेशन क्या है कि एन एक्सप्लिसिट इनिशियलाइजेशन इज जनरली प्रेफर्ड। बाय डिफॉल्ट भी कोई बने होते हैं, बट बेहतर ये होता है कि क्लास वेरिएबल्स आप लिखें, उसके अंदर आप उनके साथ स्टैटिक का कीवर्ड लिखें तो वो क्लास वेरिएबल्स बन जाते हैं। इंस्टेंस वेरिएबल क्या होते हैं? इंस्टेंशिएशन क्रिएटेड व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज इंस्टेंशिएटेड, डिस्ट्रॉयड व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज गार्बेज कलेक्टेड। ऑब्जेक्ट जो होता है, अगर जिस टाइम आप ऑब्जेक्ट बनाते हैं, जिस तरह आपने लिखा बॉल बी इज इक्वल टू न्यू बॉल, तो ये क्या हुआ? इंस्टेंस वेरिएबल बन गया। ठीक है, ये ऑब्जेक्ट बन गया।
ठीक है, या रेफरेंस वेरिएबल बन गया, जिसके बहुत सारे नाम हैं, या इंस्टेंस बन गया सिंपली। तो क्रिएटेड व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज इंस्टेंशिएटेड, तो जैसे इंस्टेंशिएटेड होगा ऑब्जेक्ट, जो कि मैंने अभी आपको कोड बताया, अगर ये लाइन लिखी जाएगी तो इसका मतलब है कि इंस्टेंस वेरिएबल बन गया। अच्छा, अब इसकी इनिशियलाइजेशन क्या होती है? एन एक्सप्लिसिट इनिशियलाइजेशन इज प्रेफर्ड। मैंने आपको बताया था कि इसकी इनिशियलाइजेशन आपने कैसे करनी है, कि आपने बॉल बी लिखा है इज इक्वल टू न्यू, आगे बॉल लिखा है, फिर पैरेंथेसिस के अंदर आप इसके वैल्यूज दे दें। वो वैल्यूज जो कंस्ट्रक्टर होगा, जब वो कॉल होगा तो वो वैल्यूज वेरिएबल्स को असाइन हो जाएंगी। तो इसको इनिशियलाइजेशन कहा जाता है, इस प्रोसेस को, जिसके अंदर आप एक ऑब्जेक्ट के वेरिएबल्स को डिफरेंट वैल्यूज असाइन कर रहे हैं। लोकल वेरिएबल्स क्या होते हैं? लास्ट टाइम भी हमने बात की पिछले लेक्चर में कि लोकल वेरिएबल्स होते हैं जो कि मेथड्स की बॉडी के अंदर लिखे जाते हैं। समटाइम्स मेथड के इटसेल्फ आपको कुछ वेरिएबल्स की ज़रूरत पड़ती है, तो उसी के अंदर अगर आप थोड़े से वेरिएबल लिख लेते हैं तो उनको लोकल वेरिएबल्स कहा जाता है। और ऑफ कोर्स उनकी लाइफ कितनी होती है लोकल वेरिएबल्स की? जब तक वो मेथड कॉल हुआ है तो लोकल वेरिएबल्स की लाइफ है, जैसे ही उसकी कॉलिंग ख़त्म हुई है तो लाइफ खत्म हो गई है। क्रिएटेड व्हेन अ मेथड और ब्रेस डिलिमिटेड ब्लॉक ऑफ कोड सच एज लूप बॉडी इज एंटर्ड, डिस्ट्रॉयड व्हेन मेथड इज एग्जिटेड। तो जैसे ही मेथड एग्जिट करेगा तो ये डिस्ट्रॉय हो जाते हैं ऑटोमेटिकली। मस्ट बी इनिशियलाइज्ड एक्सप्लिसिटली, इनको आपने एक्सप्लिसिटली इनिशियलाइज करना होता है। इनिशियलाइज का मतलब है इनको कोई वैल्यू असाइन करनी, तो आपको उसके अंदर या तो कोड के अंदर ऐसा कुछ लिखना होता है जो इनकी वैल्यूज को असाइन करे, या आप इनकी शुरू में भी इनिशियलाइजेशन कर सकते हैं। इंटीजर x इज इक्वल टू 10 या 20 लिखते हैं, तो ये इसको शुरू की इनिशियलाइजेशन कहा जाएगा। पैरामीटर्स क्या होते हैं? पैरामीटर्स लास्ट टाइम हमने बात की थी कि जो मेथड्स के बाद आप जो पैरेंथेसिस में इंटीजर x, इंटीजर y, इंटीजर z लिखते हैं, या सिंपल इंटीजर x लिख देते हैं, कोई एक देते हैं, एक से ज़्यादा देते हैं, इनको पैरामीटर्स कहा जाता है। और ये कब क्रिएट होते हैं? व्हेन अ मेथड इज एंटर्ड। अच्छा, अब ये अंदर ये भी बिल्कुल वेरिएबल्स की तरह होते हैं, क्योंकि उनके साथ आप क्या लिख रहे हैं? इंटीजर लिख रहे हैं, फ्लोट लिख रहे हैं, या स्ट्रिंग लिख रहे हैं, या कोई ऑब्जेक्ट लिख रहे हैं, क्लास का नाम लिख रहे हैं, सॉरी, या कोई और डेटा टाइप आप लिख रहे हैं। तो बेसिकली वो भी इंस्टेंसेस ही हैं, वेरिएबल ही हैं, ठीक है। तो उनकी भी एक लाइफ है। जैसे ही मेथड कॉल होता है तो कॉलिंग के साथ ही जाहिर सी बात है कि आपने जब मेथड को कॉल किया उसके अंदर अगर आपने कुछ वैल्यूज़ भेजी हैं तो वो वैल्यूज़ आकर इन इंटीजर x, इंटीजर y को असाइन हो जाएंगी, तो इनकी लाइफ स्टार्ट हो जाएगी, तो ये चलना शुरू हो जाएंगी। तो क्रिएटेड व्हेन अ मेथड इज एंटर्ड, डिस्ट्रॉयड व्हेन मेथड इज एग्जिटेड, और जैसे ये भी लोकल वेरिएबल की तरह जब वो मेथड ख़त्म हो जाएगा तो ये डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। The implicit parameter, this is the target of the invoking message. The values of explicit parameters are defined. अच्छा, अब this जो है आपको मैंने बताया था कि एक ऑब्जेक्ट की जब आप ऑब्जेक्ट को बनाते हैं, फिर उस ऑब्जेक्ट के थ्रू आप किसी भी मेथड को कॉल करते हैं, तो आप उसी ऑब्जेक्ट के साथ अगर आप this लिख दें, ठीक है, विद इन द मेथड बॉडी, तो इसका मतलब है आप उस ऑब्जेक्ट की बात कर रहे हैं जिस ऑब्जेक्ट के थ्रू मेथड को कॉल किया गया, ठीक है। अगर आपने ऑब्जेक्ट 1 डॉट माई मेथड लिखा है और माई मेथड के अंदर आपने दिस डॉट लिखा है, तो ये दिस जो है ये ऑब्जेक्ट 1 को पॉइंट कर रहा है, तो जिस ऑब्जेक्ट के थ्रू मेथड कॉल हो रहा है, ठीक है। तो ये तो थे जनाब वेरिएबल्स जिनको हमने देखा कि उनकी लाइफ टाइम कैसे स्टार्ट होती है और उनकी इनिशियलाइजेशन कैसे होती है। अच्छा, अब हम बात करते हैं ऑब्जेक्ट आइडेंटिटी के ऊपर। इफ टू रेफरेंस वेरिएबल्स हैव द सेम वैल्यू, दे आर पॉइंटिंग टू द सेम ऑब्जेक्ट। रेफरेंस वेरिएबल जो होते हैं, जिस तरह बॉल बी है, बेस बी है, अब बी जो है रेफरेंस वेरिएबल है। अब देखिए इस रेफरेंस वेरिएबल के अंदर क्या पड़ा है? हैश कोड पड़ा है, यानी एड्रेस पड़ा हुआ है, वो जो मैंने आपको जो 0xFE हेक्साडेसिमल की शक्ल में होता है एड्रेस जो है, तो वो वैल्यू पड़ी होती है रेफरेंस वेरिएबल के अंदर। और अगर दो रेफरेंस वेरिएबल्स के अंदर सेम पड़ी हुई है तो इसका मतलब है वो दोनों सेम है,
क्योंकि वो दोनों एक ही को पॉइंट कर रहे हैं। जिस तरह हमने पिछली स्लाइड्स के अंदर देखा था कि B था और फिर O1 था, तो B और O1 के अंदर जब हमने एक ही वैल्यू डाली, एक ही हेक्साडेसिमल वैल्यू डाली, तो वो दोनों एक ही ऑब्जेक्ट को पॉइंट करना शुरू हो गए। इसको कहा जाता है, इस रिलेशनशिप को कहा जाता है ऑब्जेक्ट आइडेंटिटी। ठीक है, यू कैन टेस्ट इट विद दिस इक्वल ऑपरेटर। ये जो इक्वल ऑपरेटर है, इसके थ्रू आप टेस्ट कर सकते हैं कि क्या दो ऑब्जेक्ट्स इक्वल हैं कि नहीं है, यानी उनके अंदर वैल्यू सेम पड़ी हुई है कि नहीं। फॉर एग्जांपल, अगर तो अब ये B आपके पास है, B1 बॉल टाइप। अच्छा, ये जो हम इस तरह लिखते हैं, इसका मतलब ये होता है कि B1 और ये कॉलन और बॉल, इसका मतलब है B1 एक ऑब्जेक्ट है या रेफरेंस वेरिएबल है। किस टाइप का? बॉल टाइप का। बॉल जो है क्लास का नाम है। ठीक है, तो आप हमेशा ऑब्जेक्ट को यहाँ लिखते हैं, फिर कॉलन और फिर क्लास का नाम लिखते हैं। डिज़ाइन के अंदर आप हमेशा इस तरह काम करते हैं। अब इसका मतलब ये है कि B1 के अंदर ये वैल्यू पड़ी है। इस वैल्यू का मतलब क्या होता है कि इस वैल्यू, बेसिकली ये जो हेक्साडेसिमल वैल्यू दी हुई है, ये बेसिकली एड्रेस है मेमोरी के अंदर। आपकी जो मेमोरी होती है वो बाइट्स की शक्ल में बनी होती है, और उन बाइट्स के हर बाइट का एक एड्रेस होता है। ठीक है, और अगर आप उसके अंदर जैसे ही एक वेरिएबल बनाते हैं, तो अब वो वेरिएबल अगर 2 बाइट्स ले रहा है, 4 बाइट्स ले रहा है, 8 बाइट्स ले रहा है, तो जो फर्स्ट बाइट जहां से वो स्टार्ट हो रहा है उसका एड्रेस लिया जाता है, और एड्रेसेस, हर बाइट का एड्रेस हेक्साडेसिमल कोड में लिखा होता है मेमोरी के अंदर। ठीक है, तो जैसे ही आपने एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया या एक कोई वेरिएबल आम इंटीजर x क्रिएट किया या फ्लोट y क्रिएट किया, ये सिंपल एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, बॉल B1 लिखा, तो इसकी क्रिएशन ही है ना। तो इस क्रिएशन के नतीजे में B को मेमोरी के अंदर एक लोकेशन एलोकेट हो जाएगी, और उस लोकेशन का एड्रेस क्या होगा कि जिस बाइट से वो स्टार्ट हो रहा है। अब ये जितने भी बाइट लेना चाहे इसकी मर्जी है, लेकिन जिस बाइट से स्टार्ट होगा उस बाइट का एड्रेस, इस केस में उस बाइट का एड्रेस है 0xFE100-140। ये बाइट, पहले बाइट का एड्रेस है। इधर से लेकर आगे 4 बाइट, 8 बाइट, 16 बाइट, जितने बाइट भी ये वाला ऑब्जेक्ट ले रहा है। तो अब ये देखें, ये उसकी हालत है क्लास की मेमोरी के अंदर, कि ये इस बाइट से स्टार्ट हो रहा है, ये उस बाइट का एड्रेस है, और इसके अंदर डेटा क्या रखा हुआ है, इसके क्लास का नाम रखा हुआ है, इसके अंदर x पोजीशन रखी हुई है, y पोजीशन रखी हुई है, इसका कलर रखा हुआ है। ठीक है, तो अब ये जो B1 है ना, तो B1 के अंदर और कुछ नहीं पड़ा हुआ, B1 के अंदर सिर्फ इसका एड्रेस पड़ा हुआ है। ठीक है, इसीलिए इसे रेफरेंस वेरिएबल कहते हैं, क्योंकि इसके अंदर रेफरेंस पड़ा हुआ है। रेफरेंस कहा जाता है एड्रेस को, पॉइंटर को। ठीक है, तो अब B1 के अंदर ये पड़ा हुआ। अब देखें, B1 को आपने 10 दिया, 10 इधर पड़ा, 20 दिया और रेड दिया, ये रेड असाइन हुआ है। तो ये पूरी जब आपने लाइन लिखी तो ये चीज बन गई ऑटोमेटिकली मेमोरी के अंदर। ठीक है, और उसका जो पहली बाइट का एड्रेस होगा वो असाइन हो जाता है B1 को। अच्छा, अब आप क्या कर रहे हैं यहाँ पर कि यहाँ पर आप एक ऑब्जेक्ट बना रहे हैं O1। ठीक है, कोई भी ऑब्जेक्ट। अच्छा, ये जो ऑब्जेक्ट आपने लिखा है ना, ये तो चलो बॉल है क्लास का नाम। ये किस क्लास का नाम है? ऑब्जेक्ट क्लास एक जनरल क्लास है जावा के अंदर। ठीक है, वो लिखी होती है, और आप जो भी क्लास बनाएंगे वो चाइल्ड क्लास होगी ऑब्जेक्ट की। हालांकि आप उसको चाइल्ड क्लास बनाते नहीं हैं एक्सप्लिसिटली। अब मैं आपको दोबारा बताता हूँ, जितनी भी क्लासेस आप बनाएंगे जावा के अंदर वो ऑटोमेटिकली बाय डिफॉल्ट चाइल्ड क्लासेस होंगी ऑब्जेक्ट क्लास की। ऑब्जेक्ट क्लास एक जावा की अपनी क्लास है जो आपको नजर नहीं आती, वो लिखी हुई है लाइब्रेरीज के अंदर। ठीक है, अब आप कर क्या रहे हैं, और देखें क्लास। अच्छा, ये जो ऑब्जेक्ट है ना, ऑब्जेक्ट क्लास, इसके अंदर सारा क्लास रिलेशनशिप, मतलब क्लास, इसके अपने कई मेथड्स लिखे हुए हैं। आप उन मेथड्स को यूज भी कर सकते हैं, उनको ओवरराइड भी करवा सकते हैं। फॉर एग्जांपल टू स्ट्रिंग मेथड है। अब ये टू स्ट्रिंग, आप कोई भी ऑब्जेक्ट बनाएं, कोई भी, मसलन आपने बॉल का ऑब्जेक्ट बनाया B1 डॉट टू स्ट्रिंग लिखते हैं। अब टू स्ट्रिंग तो B1 का पार्ट है ही नहीं, टू स्ट्रिंग मेथड B1 के बॉल का पार्ट है ही नहीं। बॉल के अंदर टू स्ट्रिंग मेथड लिखा हुआ ही नहीं है। और अगर बॉल किसी
पेरेंट क्लास की चाइल्ड है, इसकी पेरेंट में भी नहीं लिखा हो, तब भी टू स्ट्रिंग मेथड चल जाएगा, क्योंकि टू स्ट्रिंग मेथड ऑब्जेक्ट क्लास में लिखा हुआ है और ऑब्जेक्ट क्लास आपको नजर नहीं आती। अब बात समझ रहे हैं, उस जब नजर नहीं आती और वो आपकी पेरेंट क्लास है, वो सबकी पेरेंट होती है, आपको एक्सप्लिसिटली बताना नहीं पड़ता, आपको एक्सटेंड्स ऑब्जेक्ट नहीं लिखना पड़ता, बल्कि बाय डिफॉल्ट वो आपकी पेरेंट है। तो उसके अंदर जितने मेथड हैं वो आप यूज कर सकते हैं, क्योंकि पेरेंट के मेथड तो आप हमेशा यूज कर सकते हैं। यही रूल है ना कि जो सब क्लासेस होती हैं या जो चाइल्ड क्लासेस होती हैं वो पेरेंट के मेथड्स को यूज कर सकती हैं। तो टू स्ट्रिंग वहां पे लिखा हुआ मेथड है। इसी तरह एक इक्वल्स मेथड लिखा हुआ है वहां पे ऑब्जेक्ट के अंदर, वो भी आप यूज कर सकते हैं, डॉट इक्वल्स लिख दें, ठीक है। अब देखें उसी ऑब्जेक्ट यानी आपके जो पेरेंट है, बॉल का जो पेरेंट है, क्योंकि ये हर एक का पेरेंट है, उसके आप एक ऑब्जेक्ट बनाए O1, ठीक है, उसको आप असाइन कर रहे हैं B1। अब B1 क्या चीज है, B1 एक रेफरेंस वेरिएबल है और उसके अंदर एक एड्रेस पड़ा हुआ है, तो आपने वो एड्रेस O1 को दे दिया। अब O1 क्या है, ऑब्जेक्ट टाइप O1 के अंदर भी क्या आ गया जो B1 के अंदर था, अब O1 भी इसे ही पॉइंट कर रहा है। अब ये बिल्कुल यही चीज है, B1 और O1 एक ही चीज है। अब आप O1 डॉट एक्स पोजिशन भी लिख सकते हैं, आप एक्स पोजिशन को एक्सेस कर लें, O1 डॉट वाई पोजिशन लिखें तो आपको 20 एक्सेस हो जाएगा। अच्छा, अब इनको चेक करने का एक तरीका है कि क्या ऑब्जेक्ट, इस चीज को कहा जाता है ऑब्जेक्ट आइडेंटिटी। ये जो आपने बनाया, इन दोनों को आपने सेम कर दिया। अब इसको आप चेक भी कर सकते हैं क्या ये दोनों सेम है कि नहीं है। उसको चेक करने का तरीका ये है कि आप प्रिंट की लिखें, कोड लिखें, प्रिंट ln एंड देन O1 इज इक्वल टू B1। ये जो इज इक्वल टू का निशान है, ठीक है, क्या ये काम करेगा? बिल्कुल काम करेगा, क्योंकि O1 के अंदर भी ये, B1 के अंदर भी ये। अच्छा, अब इन दोनों के अंदर ये हेक्साडेसिमल वैल्यूज पड़ी हुई हैं, तो आपने उन दोनों को आपस में इक्वल करवा रहे, तो आपको पता होना चाहिए कि ये लॉजिकल ऑपरेटर है, आप इक्वल लिख रहे हैं। तो बेसिकली प्रिंट क्या होगा, देखें आप कोई चीज प्रिंट करवा नहीं रहे बल्कि कंपैरिजन कर रहे हैं। O1 इज इक्वल टू B1, तो कंपैरिजन का हमेशा जवाब आता है ट्रू या फॉल्स। तो जैसे ही ये लाइन कोड चलेगी तो क्या प्रिंट होगा, ट्रू प्रिंट हो जाएगा। वाकई O1 के अंदर वही कुछ पड़ा है जो B1 के अंदर पड़ा है, तो ट्रू प्रिंट हो जाएगा, क्योंकि ये कंपैरिजन है। निचली वाली लाइन में आप देखें तो अब आप इसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर रहे हैं, इसकी टाइप कास्टिंग कर रहे हैं O1 B1 की। तो टाइप कास्टिंग ट्रू की क्या टाइप कास्टिंग होगी, तो ये टाइप कास्टिंग गलत है, ये फॉल्स आपको रिजल्ट मिल जाएगा, ठीक है। इसलिए आपने हमेशा ऑब्जेक्ट आइडेंटिटी को अगर वेरीफाई करना हो तो आप सिंपली उसको इक्वल ऑपरेटर उनके दरमियान लिख के और आप उसको यूज कर सकते हैं। अच्छा, अब ये गलत क्यों है, क्योंकि आपने O1 B1 कर दिया और फिर इसको स्ट्रिंग टाइप बना दिया, तो स्ट्रिंग टाइप में इसको कोई और ही एड्रेस असाइन हो जाएगा और ही एड्रेस जो होगा वो किसी और ही वैल्यू को पॉइंट कर रहा होगा। तो अब ये दोनों चीजें तो बराबर नहीं हो सकती, तो इसलिए इसका फॉल्स जवाब आया। ऑब्जेक्ट आइडेंटिटी के अंदर ही आप इक्वलिटी टेस्ट भी कर सकते हैं। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln, अगर आपने 3 + 4 लिखा इज इक्वल टू 7 लिखा, या आपने न्यू इंटीजर बनाया, अब इनमें से इसका क्या जवाब होगा, इसका क्या जवाब होगा, ये ट्रू होगा और ये फॉल्स होगा। कैसे, अब आपने 3 + 4 लिखा है तो ये तो 7 बनेगा, 7 इज इक्वल टू 7, आपको ट्रू जनरेट हो जाएगा। लेकिन इसके अंदर आप क्या कर रहे हैं कि इस 7 को एक इंटीजर टाइप बना रहे हैं और इस 7 को भी एक इंटीजर टाइप बना रहे हैं। अब इंटीजर और इंटीजर दोनों को आप इक्वल ऑपरेटर के थ्रू करवाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अब ये भी 7 ही का इंटीजर बन रहा है, यानी एक इंटीजर टाइप बन रहा है जिसकी वैल्यू है 7, आप उसको 7 वैल्यू पास कर रहे हैं। तो ये दोनों सेम क्यों नहीं है, ये सेम इसलिए नहीं है क्योंकि अब ये एक इंटीजर है जिसकी वैल्यू 7 है, ये भी एक इंटीजर है जिसकी वैल्यू 7 है, लेकिन ये इंटीजर कहीं और सेव हुआ है। जब ये लाइन चलेगी तो मेमोरी के अंदर एक लोकेशन इस इंटीजर को मिल जाएगी। इंटीजर के लिए नॉर्मली 4 बाइट्स असाइन किए जाते हैं, ठीक है। मुख्तलिफ कंपाइलर्स मुख्तलिफ करते हैं,
सी का कंपाइलर लें तो वो 2 बाइट्स असाइन करता है, जावा का आई थिंक 4 करता है, कुछ 8 भी करते हैं बाइट्स। अब देखें जब आपका ये जैसे ये लाइन चलेगी तो क्या होगा, सबसे पहले एक इंटीजर क्रिएट होगा, ये न्यू का लफ्ज लिखा हुआ है, न्यू इंटीजर 3+4, उसको 3+4 असाइन हो जाएगा, 7 वैल्यू होगी, लेकिन उस इंटीजर को एक मेमोरी लोकेशन असाइन हो जाएगी। मैंने आपको कहा था कि जैसे इंटीजर बनता है या ऑब्जेक्ट बनता है उसको मेमोरी के अंदर एक स्पेस मिल जाती है। तो अगर इसको मिल रहे हैं 4 बाइट्स मिल रहे हैं तो पहले बाइट का एड्रेस इसके अंदर आ जाएगा। फॉर एग्जांपल हम उस बाइट के एड्रेस को कहते हैं 0xF-- जो भी है, आखिर में 8 आ गया फॉर एग्जांपल, ठीक है। तो वो इसको एड्रेस मिल गया। अब जब ये आगे है A = ये बाद में परफॉर्म होगा, पहले इसको एग्जीक्यूट होगा, ये एक और इंटीजर बन रहा है, न्यू इंटीजर 7। अब ये भी एक नया इंटीजर बन रहा है, तो इसको जो पहले इंटीजर की 4 बाइट्स थी वो छोड़ के अगली 4 इसे मिल जाएंगी। तो अगली 4 बाइट्स का जो अगली 4 बाइट्स में से जो पहली बाइट का एड्रेस होगा वो इसे मिलेगा। अब अगर पहली का जो एड्रेस था वो 8 पे ख़त्म हो रहा है, इसका एड्रेस जो है वो मे बी 12 पे ख़त्म हो या डिफरेंट हो, मतलब कहने का मतलब है इन दोनों का एड्रेस डिफरेंट होगा। तो यहाँ पर बेसिकली जब आप इंटीजर को इस शक्ल में लिखते हैं तो इनके मेमोरी के जो एड्रेसेस हैं वो आपस में कंपेयर हो रहे हैं, जो कि बिल्कुल डिफरेंट है, क्योंकि इस इंटीजर के लिए डिफरेंट स्पेस एलोकेट हुई है, इस इंटीजर के लिए डिफरेंट। तो जब ये दोनों के एड्रेसेस डिफरेंट है, इट डजंट मैटर कि उनकी वैल्यू क्या है, वैल्यू तो वो उधर स्पेस के अंदर लिखी हुई होगी, वैल्यू को तो आप कर ही नहीं रहे इक्वल, ठीक है। तो ये फॉल्स रिजल्ट आ जाएगा इसका। A box that contains 7 atoms is not identical to any other box that contains 7 atoms, but we would say 3/4 equals 7. If we want to know whether 2 boxes are equivalent, have the same value, we might have to open up the box and look inside. मैंने आपको कहा था कि बॉक्स की शक्ल में वैल्यूज जो हैं वो ये देखें, ये बॉक्स की शक्ल में मेमोरी के अंदर वैल्यूज पड़ी होती हैं, ठीक है। ये देखें बॉक्स की शक्ल में ये मेमोरी के अंदर पड़ी हुई है, ठीक है। तो आप जब ये वाला न्यू इंटीजर बनाएंगे 3+4 7, एक बॉक्स बन जाएगा इंटीजर टाइप का जो कि 4 बाइट्स पे मुश्तमिल होगा। उस बॉक्स का जो एड्रेस होगा वो पहले बाइट का जो एड्रेस है वो होगा, और उस बॉक्स के अंदर क्या पड़ा होगा 3+4 जो कि 7 है। इसी तरह ये जब होगा तो एक नया बॉक्स बन जाएगा 4 बाइट्स का, और पहले बॉक्स का जो एड्रेस होगा वो इसको असाइन हो जाएगा, और बॉक्स के अंदर क्या पड़ा होगा 7। वो बॉक्स के अंदर आपने अगर चीज देखनी है तो आप ये सारा लिख के इसके आगे डॉट इक्वल्स और का मेथड लगा दें, फिर आप कर सकते हैं, फिर आप इन दोनों को कंपेयर कर सकते हैं। डॉट इक्वल्स मेथड जो है इज इम्प्लीमेंटेड एज equal to operator in object. You should override equals if you define a subclass in which the natural definition for equaling different from. अब इधर आप अगर डॉट इक्वल्स लिख दें तो फिर ठीक है। ये देखिए न्यू इंटीजर 7 डॉट इक्वल्स 3.4, अच्छा नहीं सॉरी इस तरह डॉट इक्वल्स न्यू इंटीजर 7, तो ये ठीक हो गया। अब अगर इसको सिंपली डॉट इक्वल्स 3.4 लिख दें, डॉट इक्वल्स जो है ना वो बॉक्स को खोल के उसके अंदर से वैल्यू देखता है। तो अब ये जी कोई भी इंटीजर हो लेकिन डॉट इक्वल्स इंटीजर, तो इक्वल्स जो है अब ये जो बिकॉज ये दोनों एक जैसे हैं, डॉट इक्वल और ये इक्वल टू, लेकिन ये डॉट इक्वल्स वैल्यू लेता है और ये डॉट इक्वल जो एग्जैक्टली यहाँ पर जो एड्रेस होता है वो लेता है। और अगर एड्रेस वाली बात ना हो, जिस तरह यहाँ एड्रेस वाली बात नहीं है, यहाँ है ही वैल्यूज, तो फिर ये वैल्यूज को ही देख लेता है। लेकिन यहाँ वैल्यूज नहीं है, यहाँ बेसिकली एड्रेसेस पड़े हुए हैं, तो उन एड्रेसेस के अंदर वैल्यू को देखने के लिए आप डॉट इक्वल्स कर दें, तो ये दोनों ट्रू है। अब इसके अंदर आप देखें इंटीजर 3+4 डॉट इक्वल्स न्यू इंटीजर 7, क्या ये भी ट्रू होगा? बिल्कुल ये भी ट्रू होगा, क्योंकि डॉट इक्वल्स की बात आ गई है। तो डॉट इक्वल्स न्यू इंटीजर, ये चाहे नया इंटीजर ही क्यों ना हो, लेकिन इसकी वैल्यूज ली जाएगी और इसकी वैल्यू इस इंटीजर के वैल्यू के साथ देखी जाएगी। अच्छा यहाँ पर थोड़ा सा फर्क ये हो रहा है कि आप 3+4 लेके और आप ये इंटीजर टाइप कास्टिंग कर रहे हैं, यहाँ पे बाकायदा टाइप कास्टिंग हो रही है, यहाँ पे टाइप कास्टिंग नहीं हो रही, यहाँ पर तो नया ऑब्जेक्ट बन रहा है।
यहाँ पे टाइप कास्टिंग होके उसके बावजूद भी टाइप कास्टिंग भी आप चाहे कर लें तो वैल्यूज तो वही सेम रहेंगी 7 7। ठीक है। द हैश कोड मेथड, अच्छा द ऑब्जेक्ट क्लास, ये जो अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था, इन द जावा डॉट लैंग्वेज पैकेज सिट्स एट द टॉप ऑफ द क्लास हायरार्की ट्री। अगर आप क्लासेस की हायरार्की बनाएं, हायरार्की बनाई जाती है इनहेरिटेंस की बेस पे कि ये ऊपर सबसे पहले ऊपर आती है पेरेंट क्लास, फिर उसके चाइल्ड क्लासेस आते हैं, फिर उन चाइल्ड के चाइल्ड आते हैं, फिर उन चाइल्ड के चाइल्ड आते हैं। ठीक है, ये हायरार्की होती है। तो इस हायरार्की के ऊपर हमेशा ऑब्जेक्ट क्लास होती है। ऑब्जेक्ट जो है वो सबकी पेरेंट होती है और आपको बताना नहीं पड़ता, वो ऑटोमेटिकली सबकी पेरेंट होती है। एवरी क्लास इज अ डिसेंडेंट, तो हर क्लास जो है वो डिसेंड हुई है, डिसेंडेंट है ऑब्जेक्ट की, यानी कि वो उसकी चाइल्ड है। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, अगर आप डायरेक्ट करना चाहें तो आपकी मर्जी है, आगे एक्सटेंड्स लिख के ऑब्जेक्ट लिख दें, ना भी लिखें तो इनडायरेक्टली वो ऑब्जेक्ट की चाइल्ड क्लास ही है। अच्छा, एवरी क्लास यू यूज और राइट इनहेरिट्स द इंस्टेंस मेथड ऑफ ऑब्जेक्ट। तो अब जो भी क्लास आप लिखेंगे या यूज करेंगे वो ऑब्जेक्ट से इनहेरिट होती है, तो ऑब्जेक्ट के वो सारे मेथड्स को यूज कर सकती है। ये भी बात मैंने आपको पहले बताई थी। You need not use any of these methods, but if you choose to do so, you may need to override them with code that is specific to your class. आप इनको override कर सकते हैं। जो ऑब्जेक्ट के मेथड्स हैं, जिस तरह मैंने टू स्ट्रिंग बताया था, या ये जो पिछली स्लाइड्स में हमने डॉट इक्वल्स पढ़ा है, ये बेसिकली एक मेथड है जो कि ऑब्जेक्ट में लिखा हुआ है। तो आपने ये एज इट इज़, ये देखें, इसको यूज़ कर लिया यहाँ पे। तो ये डॉट इक्वल्स जो है वो बेसिकली मेथड था लिखा हुआ, तो उसको आपने यूज कर लिया जो कि ऑब्जेक्ट का मेथड था। तो अब आप चाहें तो इसको ओवरराइड कर सकते हैं। आपको ओवरराइड का मतलब पता है? ओवरराइड का मतलब होता है कि आपके पेरेंट का जो मेथड है आप उसको अपने क्लास के अंदर यानी सब क्लास के अंदर दोबारा से लिख सकते हैं विद न्यू इम्प्लीमेंटेशन। तो फिर जब आप उस मेथड को कॉल करेंगे तो जो नई इम्प्लीमेंटेशन आपने दी है वो उसके मुताबिक वो चलेगा। फॉर एग्जांपल ये डॉट इक्वल्स जो है ऑब्जेक्ट के अंदर लिखा हुआ है, इसकी इम्प्लीमेंटेशन लिखी हुई है, लेकिन अगर आपने इसको ओवरराइड किया यानी अपने कोड के अंदर डॉट इक्वल्स का एक नया मेथड बनाया, यानी इक्वल्स का नया मेथड बनाया और उस नए मेथड के अंदर आपने उसकी सारी लॉजिक जो है वो चेंज कर दी, यानी अपनी तरफ से लॉजिक लिखी, तो अब इसको ओवरराइडिंग कहा जाता है। तो ये ओवरराइडिंग आप कर सकते हैं ऑब्जेक्ट के मेथड्स की, और फिर आप जैसे ही इस इक्वल्स को कॉल करेंगे तो आपका जो सब क्लास वाला मेथड है ये वाला रन होगा। द वैल्यू रिटर्न बाय हैश कोड इज द ऑब्जेक्ट्स हैश कोड विच इज द ऑब्जेक्ट्स मेमोरी एड्रेस इन हेक्साडेसिमल। आप अगर किसी भी ऑब्जेक्ट का हैश कोड मालूम करना चाहते हैं तो आप क्या कर सकते हैं कि ऑब्जेक्ट लिखें, फॉर एग्जांपल बॉल बी है, बी डॉट हैश कोड को प्रिंट करवा दें। तो क्या प्रिंट होगा? उसका एड्रेस, वो जो एड्रेस आपने देखा था हेक्साडेसिमल में 0xf। अगर आप किसी भी ऑब्जेक्ट का देखना चाहते हैं तो सिंपली आप सिस्टम डॉट println डॉट, वो जो println की कमांड है सिस्टम डॉट आउट डॉट println, वो लिख के और ऑब्जेक्ट का नाम यानी बी लिखें, b1 लिखें जो भी ऑब्जेक्ट का नाम है, डॉट हैश कोड लिखें और इसको पैरेंथेसिस क्लोज कर दें। तो आपको डिस्प्ले स्क्रीन के ऊपर हेक्साडेसिमल कोड मिल जाएगा, यानी उसका मेमोरी में एड्रेस मिल जाएगा कि वो किस बाइट पे पड़ा हुआ है और किस बाइट से स्टार्ट होता है। बाय डेफिनेशन इफ टू ऑब्जेक्ट्स आर इक्वल देयर हैश कोड मस्ट आल्सो बी इक्वल। जाहिर सी बात है, अगर दो ऑब्जेक्ट्स को आप इक्वल करेंगे यानी एक ऑब्जेक्ट को दूसरे को असाइन करेंगे तो फिर इसका मतलब है आप उस ऑब्जेक्ट का एड्रेस दूसरे को असाइन कर रहे हैं, तो ये दोनों सेम होंगे, तो इनका हैश कोड क्या होगा? वो भी सेम आएगा, यानी इनकी हेक्साडेसिमल वैल्यू सेम होगी। If you override the equals method, you change the way two objects are equated and objects implementation of hash code is no longer valid. अच्छा, अब अगर आपने equals को override कर दिया यानी equals को आपने change कर दिया आपने क्लास के अंदर, तो फिर जारी बात है हैश कोड भी चेंज हो जाएगा, यानी हैश कोड का मकसद ही फोत हो जाएगा, क्योंकि आपने वो जो इक्वल्स था वो क्या करता था, इक्वल्स की बॉडी के अंदर हैश कोड की बॉडी लिखी हुई है, मतलब हैश कोड का इस्तेमाल किया हुआ है कि वो उस हैश कोड पे जाके उधर की वैल्यू उठाता था। लेकिन अगर आपने इक्वल्स को ओवरराइड कर दिया तो फिर हैश कोड का फ़ायदा ख़त्म हो जाएगा। ठीक है,
Therefore, if you override the equal method, you must also override the hash code method as well. तो आप अगर override करें equals को, तो hash code को भी फिर override करें अपने मुताबिक. अगर आप equals को अपने मुताबिक लिख रहे हैं, तो hash code भी को भी अपने मुताबिक लिखें. The hash code method runs an integer. Hash codes are used in hash set, hash map, and some other collection classes which use hash algorithm. तो हैश मैप हम पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, हैश सेट की भी नहीं ज़रूरत. कलेक्शन को हमने टच किया था, इनके अंदर हैश कोड्स ज़्यादातर यूज़ होते हैं. तो आपको बस इतना ही जानना ज़रूरी है कि हैश कोड जो है वो आपको हेक्साडेसिमल रेफरेंस वैल्यू देता है. स्ट्रिंग इक्वालिटी को अगर आप देखें तो इसके अंदर आपको केयरफुल रहना पड़ता है, बिकॉज अगर आप देखें कि एक आपने स्ट्रिंग बनाया S1 एप्पल और एक आपने बनाया S2 और उसको भी आपने एप्पल दे दिया, तो S1 इज इक्वल टू S2. अगर आप ये तो मैसेज है, खैर यहाँ पे आप लॉजिक ऑपरेटर लगा रहे हैं S1 इज इक्वल टू S2, तो क्या होगा, ये ट्रू होगा. ठीक है, उन दोनों के अंदर वैल्यू. लेकिन अगर आपने S1 डॉट इक्वल्स और S प्लस S1 डॉट इक्वल्स लिखा है, ये भी ट्रू होगा. ठीक है, स्ट्रिंग्स जो है ना वो डिफरेंट होते हैं. जो अभी हमने पहले बात की थी ऑब्जेक्ट्स की, अगर आपने या इंटीजर के ऑब्जेक्ट को बनाया था, अगर उसको इस तरह लिखेंगे ना तो आपको यहाँ फॉल्स मिलेगा. लेकिन स्ट्रिंग्स क्या है, इम्यूटेबल, यानी ये चेंज नहीं होते. नन ऑफ द स्ट्रिंग मेथड्स विल मॉडिफाई द वैल्यू ऑफ एन एग्जिस्टिंग इंस्टेंस. इंस्टेड अ न्यू स्ट्रिंग इंस्टेंस क्रिएटेड एंड रिटर्न. सम स्ट्रिंग्स आर इंटर्न्ड, मतलब क्या, accessible by hash lookup at runtime. You may get a reference to an existing instance when you ask for a new string. Then again you might not. अब ये दोनों में इधर equals पे भी true आ रहा है, और अगर simple equal operator लिखेंगे तब भी true आएगा. लेकिन अगर आपने string को, ये तो था string integers थे, ये इसीलिए true आ रहे थे. देखिए, sorry, string integers नहीं, string variables थे. ये वेरिएबल्स थे और वेरिएबल्स के अंदर जो वैल्यूज थी, तो आपने उनको दोनों को देखा तो वो सेम था. देखें, ये जिस तरह वेरिएबल होते हैं, इंटीजर x इज इक्वल टू 10, इंटीजर y इज इक्वल टू 10. जब x इज और ये डबल ऑपरेटर लिखेंगे x इज इक्वल टू y, तो ट्रू वैल्यू आएगी क्योंकि दोनों के अंदर 10 है. ये भी उसी तरह का प्रिमिटिव, ये यहाँ पर प्रिमिटिव टाइप यूज की हुई है स्ट्रिंग की, और यहाँ पे हम स्ट्रिंग का ऑब्जेक्ट बना रहे हैं. ये थोड़ा डिफरेंस है इन दोनों में. यहाँ प्रिमिटिव है जिस तरह इंटीजर x, फ्लोट f, स्ट्रिंग s. ठीक है, बट यहाँ वी आर मेकिंग एन ऑब्जेक्ट, और आप इन प्रिमिटिव टाइप्स के ऑब्जेक्ट भी बना सकते हैं. जिस तरह हमने पिछली स्लाइड में देखा कि इंटीजर का ऑब्जेक्ट हमने बनाया, न्यू इंटीजर, और उसको एक वैल्यू दी 3.4. इसी तरह न्यू स्ट्रिंग और उसको एक वैल्यू आप दे रहे हैं एप्पल S3. ठीक है, S4 को आप न्यू स्ट्रिंग एप्पल. अब मुझे बताएं क्या ये S3 इज इक्वल टू S4 सेम होगा? अब सेम नहीं होगा, क्योंकि अब ये S3 एक ऑब्जेक्ट है, S4 भी एक ऑब्जेक्ट है, और ये नए बने हुए ऑब्जेक्ट हैं. इसका मतलब है इनके अंदर ये वैल्यूज नहीं पड़ी हुई, इनके अंदर एड्रेसेस पड़े हुए हैं. S3 का एड्रेस पड़ा हुआ है, वो जो मेमोरी के अंदर बॉक्स मिल जाता है हर ऑब्जेक्ट को, उसका एड्रेस पड़ा हुआ है S3 में. S4 को भी एक बॉक्स मिल गया, उसका एड्रेस पड़ा. अब बॉक्स के अंदर एप्पल पड़ा हुआ है, तो जब अंदर पड़ा हुआ बॉक्स को खोलने का तरीका क्या है? डॉट इक्वल्स के थ्रू. तो अगर आपने S3 डॉट इक्वल्स लिखा S4, तो ये ट्रू है. तो ठीक है, S3 डॉट इक्वल्स और इक्वल्स के अंदर आप S4 लिख दें. तो अब क्या होगा, इन दोनों की बॉक्सेस, ये जो S3 का बॉक्स है, S4 का बॉक्स है, उनके अंदर जो वैल्यूज होंगी उनको ये कंपेयर किया जा रहा है, तो वो ट्रू वैल्यू आएगी. तो इसकी मॉरल क्या है कि यू शुड यूज इक्वल्स एंड नॉट इक्वल ऑपरेटर टू टेस्ट स्ट्रिंग्स फॉर इक्वालिटी. तो स्ट्रिंग्स अगर आपने एज ए ऑब्जेक्ट यूज किए तो आपको हमेशा इक्वल्स यूज करना चाहिए. अदर ओवरराइडेबल ऑब्जेक्ट मेथड्स. ऑब्जेक्ट हैज टू अदर मेथड्स यू माइट वांट टू ओवरराइड. टू स्ट्रिंग को आप ओवरराइड कर सकते हैं, क्लोन को ओवरराइड कर सकते हैं. टू स्ट्रिंग जो होता है ना, वो किसी भी इंटीजर वगैरह को, फ्लोट को, उनको स्ट्रिंग वैल्यू बना देता है, उनको रिटर्न द स्ट्रिंग रिप्रेजेंटेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट. ठीक है, कोई ऑब्जेक्ट है और उसके अंदर कोई वेरिएबल्स पड़े हुए हैं, तो उनकी स्ट्रिंग, उनको स्ट्रिंग की सूरत में आपको वापस करता है टू स्ट्रिंग. क्लोन क्या करता है कि ये इट मेक्स अ कॉपी ऑफ एन एग्जिस्टिंग ऑब्जेक्ट.
ठीक है, उसका एक क्लोन बना देते हैं, क्लोन कॉपी को कहा जाता है, यानी एज इट इज, उसके अंदर वैल्यूज भी सेम होती हैं, ठीक है, वो एज इट इज, उसका एड्रेस भी सेम होगा, एज इट इज क्लोन बन जाएगा। सॉरी, एड्रेस नहीं सेम होगा लेकिन उसकी वैल्यूज एग्जैक्टली सेम होंगी। ओके, सो ये क्लास ऑब्जेक्ट है, उस ऑब्जेक्ट के अंदर इस तरह एक मेथड लिखा हो। ये ऑब्जेक्ट वही क्लास है जो सबकी पेरेंट क्लास है, और अगर आप कभी लाइब्रेरीज वगैरह में जाएं और या ऑनलाइन आप सर्च करें क्लास ऑब्जेक्ट, आप इसको सारे मेथड्स आपको इसके मिल जाएंगे, जिसके अंदर एक मेथड है इक्वल्स। तो ये इक्वल्स कर क्या रहा है कि ये इस तरह रिटर्न कर रहा है। अच्छा, अब एक और मेथड इसमें पड़ा हुआ है टू स्ट्रिंग। टू स्ट्रिंग क्या करता है, गेट क्लास डॉट गेट नेम, यानी उसको स्ट्रिंग में चेंज करके दे देता है। इसी तरह एक क्लोन भी पड़ा हुआ है, और क्लोन जो है वो आपको चेक करके देता है कि क्या दो क्लोन, ये जो क्लोन मेथड है ना, ये आपको चेक करके देता है कि क्या दो आइडेंटिकल हैं, क्लोन हैं एक दूसरे के। अगर ना हो तो ये एक एक्सेप्शन थ्रो कर देता है। अब इनका देखते हैं हम। द गेट क्लास मेथड, यू कैन नॉट ओवरराइड गेट क्लास। अब गेट क्लास गेट ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट क्लास के अंदर एक मेथड है, लेकिन इसको आप ओवरराइड नहीं कर सकते। कैन यू सी वाई दिस इज इन अलाउड, ये क्लास ऑब्जेक्ट है, इसके अंदर ये गेट क्लास पड़ा हुआ है, तो गेट क्लास को आप ओवरराइड नहीं कर सकते। क्या आप बता सकते हैं? एक मिनट आप इस वीडियो को रोकें और इस कोड को देखें और फिर मुझे बताएं कि क्यों ओवरराइड नहीं हो सकता। अब उम्मीद है कि आपने वीडियो रोकी होगी और इसको देखा होगा और आपको पता चल गया होगा कि क्यों ओवरराइड नहीं कर सकते। अब मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि यहाँ पे एक कीवर्ड लिखा हुआ है। ये क्या लिखा हुआ है? फाइनल। ये ऑब्जेक्ट क्लास है जो कि आपको नजर नहीं आती, हाइड है ना, उसके अंदर गेट क्लास है। आपको मैंने बताया कि आपकी हर क्लास इस क्लास की चाइल्ड क्लास होती है, तो आपने जो क्लास भी लिखेंगे उसके अंदर आप ऑब्जेक्ट के मेथड्स को यूज भी कर सकते हैं, ऑब्जेक्ट के मेथड्स को ओवरराइड भी कर सकते हैं, लेकिन दिस गेट क्लास मेथड को आप ओवरराइड नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि फाइनल का कीवर्ड लिखा हुआ है, और हमने पिछली स्लाइड्स में बताया था कि जो मेथड्स के साथ फाइनल लिखा हो उनको आप ओवरराइड नहीं कर सकते, या जिनके साथ आपको स्टैटिक लिखा हो उनको भी आप ओवरराइड नहीं कर सकते। ठीक है, अच्छा, अब इसके अंदर अगर आप देखें सिस्टम डॉट आउट, आप इनको यूज कर सकते हैं कि आप एक क्लास बनाएं, क्लास सी, एक आपने बनाया पॉइंट P1 को आपने कुछ वैल्यूज दे दी, एक आपने बनाई क्लास सी, और सी के P1 डॉट गेट क्लास, तो P1 डॉट गेट क्लास आपने किया तो सी के अंदर गेट क्लास आ गई है, यानी P1 की क्लास कौन सी है, आपने P1 डॉट गेट क्लास लिखा तो P1 की जो क्लास होगी ना वो आ जाएगी, वो किसे मिल गई? सी को। और सी डॉट गेट नेम लिखेंगे तो क्लास का नाम आ जाएगा पॉइंट। ठीक है, इसी तरह सी डॉट गेट सुपर क्लास डॉट गेट नेम लिखेंगे तो आपको, अच्छा आप ये, तो फिर क्या होगा कि P1 की जो सुपर क्लास है उसका नाम यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा, जो कि सुपर क्लास क्या है? ऑब्जेक्ट। उसका पूरा नाम ये होता है जावा डॉट लैंग डॉट ऑब्जेक्ट, लेकिन ऑब्जेक्ट ही कहा जाता है। ये देखें, ये वाली, आप किसी भी क्लास, कोई भी क्लास बनाएं, उसका कोई ऑब्जेक्ट बनाएं और उस ऑब्जेक्ट के आगे ये वाले दो लाइनें लिखते हैं, उस ऑब्जेक्ट का नाम लिखें, डॉट गेट सुपर क्लास लिखें, डॉट गेट नेम लिखें, तो आपको हमेशा यही मिलेगा। क्यों? अगर उसकी कोई और सुपर क्लास ना हुई तो, ठीक है, तो आपको हमेशा ये मिलेगा, क्योंकि हर एक की जिसकी सुपर क्लास कोई भी ना हो तो उसकी सुपर क्लास ये होती है। ठीक है, the clone method in the object class throws an exception if the class of this object does not implement the interface clonable। अच्छा, क्लोनेबल आपने पहले, अगर आपने क्लोन मेथड को यूज़ करना है तो सबसे पहले क्लोनेबल को इम्प्लीमेंट करवाना पड़ेगा। क्लोनेबल इंटरफेस क्रिएट्स एन ऑब्जेक्ट ऑफ द सेम टाइप एज द ओरिजिनल ऑब्जेक्ट। अच्छा, ये उसी तरह की बिल्कुल कॉपी बना देता है। इफ एन ऑब्जेक्ट रेफरेंस अनदर ऑब्जेक्ट देन यू माइट वांट टू ओवरराइड क्लोन सो दैट इट ऑलवेज थ्रोज एन एक्सेप्शन और इट क्लोन्स द अदर ऑब्जेक्ट एंड रेफरेंसेस। तो अगर आपने क्लोन को ओवरराइड करना हो तो फिर आपको उसके अंदर जो एक्सेप्शन हैंडलिंग है उसको भी चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, इसके बाद आता है नेस्टेड क्लासेस। नेस्टेड क्लासेस होती हैं कि एक क्लास के अंदर दूसरी क्लास लिखना, उसको नेस्टेड क्लासेस कहा जाता है। अ क्लास डिफाइंड इनसाइड अनदर क्लास, उसकी कभी कभी ज़रूरत पड़ती है, जिस तरह ये इनमरेशन है, ये देखें
some classes only make sense in the context of another enclosing class. For example, enumeration. अब enumeration एक basically set होता है, ठीक है, प्री डिफाइंड वैल्यूज का, तो उसको अलहदा से लिखने की जरूरत नहीं है और वो क्लास की शक्ल में होता है, तो आप उसको इनर क्लास बना के, यानी क्लास की बॉडी के अंदर ही एक और क्लास की बॉडी आप लिख सकते हैं, ठीक है। और जिस तरह या GUI का कोई इवेंट हैंडलर होता है, तो इवेंट हैंडलर को भी आप इसी तरह लिखते हैं। नेस्टेड क्लास का क्या होता है कि नेस्टेड क्लास इज अ मेंबर ऑफ इट्स एनक्लोजिंग क्लास। ये जिधर होती है ये उसकी मेंबर के तौर पे मेंबर कहा जाता है। किसी भी क्लास का मेंबर्स कौन कौन से होते हैं? मेथड्स और उसके वेरिएबल्स। तो अगर आपने किसी क्लास में एक इनर क्लास लिख ली तो वो भी उसकी मेंबर बन जाती है। नॉन स्टैटिक नेस्टेड क्लासेस हैव access to other member of the enclosing class even if they are declared private. Static nested class do not have access to other. अच्छा, अगर आपने नेस्टेड क्लास को स्टैटिक बना दिया तो वो दूसरे मेंबर्स जो होंगे ना क्लास के, यानी उसकी आउटर क्लास जो होगी उसके मेंबर्स को एक्सेस नहीं कर सकेगी। लेकिन अगर आपने उसको स्टैटिक ना बनाया तो वो जिस क्लास के अंदर लिखी हुई है उस क्लास के बाकी मेंबर्स को भी वो एक्सेस कर सकेगी। एज अ मेंबर अ नेस्टेड क्लास कैन बी डिक्लेयर प्राइवेट, पब्लिक, प्रोटेक्टेड। जिस तरह पहले आम क्लासेस को आप लिखते हैं इसी तरह इसको भी प्राइवेट, पब्लिक, प्रोटेक्टेड लिख सकते हैं। रिकॉल दैट आउटर क्लास कैन ओनली बी डिक्लेयर्ड पब्लिक और पैकेज। देयर आर टू एडिशनल टाइप्स ऑफ इनर क्लासेस। एक लोकल इनर क्लास होती है कि एनोनिमस इनर क्लास। यू कैन डिक्लेयर एन इनर क्लास विद इन द बॉडी ऑफ मेथड। आप एक मेथड के अंदर भी इनर क्लास लिख सकते हैं और फिर इसको लोकल इनर क्लास कहा जाएगा। यू कैन ऑल्सो डिक्लेयर इनर क्लास विद इन द बॉडी ऑफ अ मेथड विदाउट नेमिंग इट। और अगर इसको नेम ना किया आपने, दिस क्लासेस आर नोन एज एनोनिमस इनर क्लासेस, उसको कोई नाम ना दें और सिंपल एक क्लास बना दें तो ये एनोनिमस बन जाएंगी। यू विल एनकाउंटर सच क्लासेस इन एडवांस जावा प्रोग्रामिंग। तो इस जावा प्रोग्रामिंग में नहीं लेकिन एडवांस में इनर क्लासेस की काफ़ी यूजेज है, एनोनिमस का भी यूजेज है। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। आज के लेक्चर के अंदर हमने क्या क्या पढ़ा कि वी स्टडीड इनमरेशन टाइप्स, हाउ यू डिक्लेयर इनमरेशन, एंड इफ यू हैव गॉट फिक्स्ड वैल्यू of a variable, then you can make it an enumeration, and it is declared such as it's like a class, like you declare all the values of enumeration within curly brackets. Then we talked about memory allocation, how objects gets a memory space and what kind of address is assigned to the object, how that address is assigned, and if you try to assign one object's address to another one, then both will be pointing to the same object and they both will have the same values. फिर हमने object identity को देखा कि when you are trying to find out if two objects are same or not and you use double equal signs, that is equal operator, तो वो कैसे behave करता है. फिर हमने assignment, equality और copying को देखा, object class को देखा, हमने equals और toString को भी देखा, and I also said that I also told you how to override equals and toString methods. Then we also talk about cloning, and then in the end we talked about nested classes कि क्या होती हैं और कैसे काम करती हैं, कि कैसे आप एक क्लास को दूसरी क्लास के अंदर लिख सकते हैं इनर बॉडी में, तो उसको इनर क्लास भी कहा जाता है. So this was our lecture today. We discussed a lot of other constructs as far as their Java implementation is concerned. हमने देखा कि Java code कैसे लिखा जाता है, इन चीज़ों का कैसे आप overriding कर सकते हैं, कैसे इन methods को use कर सकते हैं. ये था आज का लेक्चर. आज का लेक्चर यहीं पे ख़त्म होता है. नए लेक्चर में नए टॉपिक के साथ मिलते हैं. तब तक के लिए इजाज़त दीजिए. अल्लाह हाफिज़.